ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ କି ସମ୍ବଳ। ଏହି ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ସମ୍ବଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ନା ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯାହା ସବୁ ଦେଖିବା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ। ଏଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବଳ ଆଖ୍ୟା କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ନା ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଉପଯୋଗିତା ଅଛି ଆମ ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଏବଂ ସଂଜ୍ଞା ଏଇଆ ହେଇପାରେ ଯାହା ସବୁ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାନବର ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ହେବ ତାର ସମ୍ବଳର ସଂଜ୍ଞା। ଆଉ ଥରେ କହିପାରେ ଯାହା ସବୁ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ ଆମ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ହିଁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ସମ୍ବଳର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଠି ଉପଯୋଗିତା। ଉପଯୋଗିତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ନା ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ମନେକର ତୁମକୁ ଶୋଷ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇ ତୁମେ ତୁମର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କଲ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଯଦି ତୁମକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ତମେ ମନା କରୁଛ ଯେହେତୁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ତାର ଉପଯୋଗିତା ଥାଏ। ଏ ହେଲା ଉପଯୋଗିତା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା। ଆମକୁ ବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏଇଟା ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ପରଟି ହେଲା ସୁଲଭତା। ଆମେ ସହଜରେ ପାଇପାରୁଛେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଏକୁ ପାଇପାରୁଛେ ଏବଂ ଆମର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁଛେ। ଇଏ ହେଲା ସୁଲଭତା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା। ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ପ୍ରକୃତିରୁ ଆଣିକି ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ଉପବାଚ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ବଳର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟବହାର, ସୁଲଭତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଏଠାରେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାର, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ତୃତୀୟଟି ମାନବ ସମ୍ବଳ।
प्रथमे देखिबा प्राकृतिक संबल काहाकू कहा जाए। जो संबल प्रकृति रे उपलब्ध ताकू ही प्राकृतिक संबल कहा जाए। उदाहरण आम नहीं परिबा भूमि, अरण्य, वन्य प्राणी, जल, वायु और खनिज पदार्थ ये सब प्रकृतिर उपलब्ध बा प्रकृति आम सीधा सड़क लाभ करुचे। तेणु एगुड़िक है प्राकृतिक संबल। द्वितीय देखिबा सांस्कृतिक संबल। संस्कृति विभिन्न जहाँ सब आमर सांस्कृतिक कार्य लगी थाए। उदाहरण स्वरूप एगुड़िक मनुष्यकृत से गुड़िक थिला प्राकृतिक एटा आपे आपे सृष्टि होता है, किंतु ए संबल है जो सांस्कृतिक संबल ये है मनुष्यकृत सांस्कृतिक संबल। जेते सब आमर अर्थनैतिक कार्यकलाप आम करुचे दैनंदिन जीवन रे ये गुड़िक सब है सांस्कृतिक संबल। आउे था शिल्प, वाणिज्य ये सब जो कार्यकलाप ये गुड़िक सांस्कृतिक संबल रे अंतर्भुक्त करा जायछि। तृतीयटी है मानव संबल। मानव आम समस्ते मानव, तेणु आम किपरि संबल ना आमर भी आवश्यकता रही। मनीष भी आउ जड़े मनीष द्वारा तार आवश्यकता पूरण करुथाए। जथा गोटे शिक्षक द्वारा छात्र माने ताकर आवश्यकता पूरण करिथांती। तेणु शिक्षक माने मध्य संबल। तेणु संबल सृष्टि करिबारे मानव मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। तेणु मानव होउची संबलर निर्माता बा सृष्टिकर्ता। तेणु मानव को एक स्वतंत्र संबल बोली कहा जाए पारे। ए मानव संबल भितर विभिन्न संरचना, संस्थान, ज्ञान कौशल, विभिन्न गुणवत्ता ये सब गुड़ी को आमे मानव संबल कहि पारिबा। परवर्ती पॉइंट को आमे जेबा 2 रे उत्पत्ति अनुसार संबल को देखिबार 2 भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथमटी हैला जैव संबल, द्वितीयटी हैला अजैव संबल। जैव संबल काहाकू कहा जाए? जो संबलर जीवन थाए बास प्रत्येक सजीव से गुड़ी को जैव संबल अंतर्भुक्त करा जायछि। आमे प्रथमे आगे लेखिबा तार संज्ञा, तापर आमे दबा उदाहरण, कारण ए गुड़िक 2 मार्किया प्रश्न पड़ी थाए। उदाहरण आमे नहीं परिबा जेते सब अणुजीव बा उद्भिद, माछ, मनीष आउ विभिन्न वन्यजंतु एवं मनीष मध्य ये समस्त हेले जैव संबल। तापरे जीवा अजैव संबल। जो सब पदार्थर जीवन न थाए किंतु आमर आवश्यकता पूरण करुथाए ताहाकू आमे अजैव संबल कहि परिबा। यार उदाहरण आमे नेबा भूमि, शिला, जल और खनिज पदार्थ ये सब गुड़िक जीवन विहीन। तेणु ये गुड़िक सब अजैव संबलर उदाहरण। देखिबा परवर्ती परवर्ती संबलटी है व्यवहार और सुलभता अनुसार एठी संबल को मध्य 2 भाग रे विभक्त करा जायछि। यथा 1 रे सरंती संबल, 2 रे असरंती संबल। ए सरंती संबल जो संबल को व्यवहार कला परे खूब शीघ्र
सरी जाई थाए बा कम समय रे सरी जाई थाए ताहाको सरंती संबल कहा जाए। उदाहरण आम नहीं परिबा एठरे प्रथम अच्छी भूमि शिला जल मूर्तिका विभिन्न खनिज पदार्थ ये सबू सरंती संबल। सेपरि असरंती संबल जो संबल को व्यवहार कले ताहा शेष हुए नहीं ताहाको असरंती संबल कहा जाए। तार उदाहरण वायु और सौर शक्ति मनला वायु और सौर शक्ति। परवर्ती पॉइंट को आम जीवा परिमाण अनुसार आमे मध्य संबल को पुणी दुई भाग रे विभक्त करिछंती। प्रथमटी अपूरणीय संबल द्वितीयटी पूरणीय संबल। अपूरणीय संबल कौन ना ये संबल है से संबल जहाँ को आमे व्यवहार करिबा परे आउ खूब शीघ्र ताको पूरण करि परिबा नहीं। जोड़ा कि बहुत समय लगी था हजार हजार वर्ष लगी था सृष्टि हवा पाई आम निमिषक मध्य ताकू व्यवहार करदे किंतु पुणी सेटा सृष्टि हवा को प्राय हजार हजार वर्ष लगी था ताको सहजरे पूरण करी हुए नहीं ताहाकू कहा जाए अपूरणीय संबल। उदाहरण खनिज एवं कोयला जेते सब खनिज पदार्थ आम पाउछे आउ कोयला सेपरि पूरणीय संबल जो संबल को व्यवहार करिबा परे खूब शीघ्र कौन होता है पूरण हो जाए एवं आम आउ अभाव उपलब्धि करती नहीं ताहाकू कहा जाए पूरणीय संबल। उदाहरण प्रथम जल वायु ए दुईटी उदाहरण रे लेखिबा पड़ो। 5 रे भरण अनुसार संबल को मध्य दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथमटी नवीकरण योग्य संबल द्वितीयटी है नवीकरण अयोग्य संबल। नवीकरण योग्य कौन ना थरे व्यवहार कला परे पुणी आमे ताको नुआ करी पुणी सृष्टि करी पारिबा ताहा ही होचे नवीकरण योग्य। उदाहरण आमे नै परिबा जल एवं मूर्तिका जल चक्र रे जानिथिबो जल विभिन्न अवस्था को परिवर्तित हेई थाए तेणु अवस्था पर अवस्था परिवर्तित हेई थाए जहा कहा जाए जल चक्र। जल तेणु होचे गोटे नवीकरण योग्य संबल। सेपरि मूर्तिका मूर्तिका क्षय हुए पुणी ताकू नुआ करी मध्य सृष्टि करा जाई पारे जदे पहाड़ पर्वत वर्षा द्वारा क्षय प्राप्त होई पुणी मूर्तिका गठन हो जाई थाए तेणु ताकू कहा जाए नवीकरण योग्य। नवीकरण अयोग्य कोयला पेट्रोलियम जे कि खनिज पदार्थ एगुड़िक हजार हजार वर्ष धरी सृष्टि हवा परे आमे ताको आउ थरे करि परिबानी संगे संगे बाखु कम समय रे आमे ताको सृष्टि करि परिबा नाही तेणु एटा हला नवीकरण अयोग्य। परवर्ती देखिबा 6 रे पॉइंट वाइज ताको सब ए भाई मन रखिबा तुमको सुविधा हेबो एवं सहज हेबो मध्य। बंटन अनुसार संबल को मध्य दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथमटी हैला सर्वत्र सुलभ संबल द्वितीयटी हैला स्थानीय संबल। एई सर्वत्र सुलभ संबल कौन लेखिबा ना जेउ संबल सबु स्थान रे मिली थाए ताहाकू
सर्वत्र सुलभ संबल कुआଯାଏ। नारू आम संज्ञा लिखा भारी सहज, तेणु किसी कष्ट हो नहीं तुम आउ थे कहीदे सर्वत्र सुलभ संबल क्या कुआଯାଏ ना जो संबल सबु स्थान मिल थाए ताहाकू सर्वत्र सुलभ संबल कुआଯାଏ। उदाहरण आम नहीं परिबा भूमि आउ जल, ये सबु स्थान में प्राय मिली थाए। भूमि जल आम वायु की किसी मात्रा नहीं पारिबा, किंतु केतक स्थान अच्छी जोटा कि वायु मिले। हाँ तापरटी देवा स्थानीय संबल। स्थानीय संबल संज्ञा लिख प्रथम ये पार्थक्य दशा पड़ो, प्रथम संज्ञा तापर उदाहरण, ये 2 मार्किया प्रश्न परीक्षा रे पड़े। स्थानीय संबल है से संबल जो संबल एक निर्दिष्ट स्थान रे उपलब्ध होता है ताहाकू स्थानीय संबल कुआଯାଏ। उदाहरण आम नहीं पारिबा खनिज पदार्थ, मन सुना केतक निर्दिष्ट अंचल में मिले, सब स्थान में मिले। कोयला ये भी गोटे खनिज पदार्थ, ये भी गोटे निर्दिष्ट स्थान में मिली था। ये आम विभिन्न खनिज पदार्थ बा पेट्रोलियम ये सब को आम उदाहरण नहीं पारिबा स्थानीय संबल रे। तेणु वर्तमान आम परवर्ती पॉइंट को जीवा 7 नंबर पॉइंट, विकास अनुसार संबल को 3 भाग रे विभक्त करा जायछि। गच्छित संबल, संबल भंडार, विकसित संबल, संरक्षित संबल, 4 भाग रे विभक्त करा जायछि विकास अनुसार। ए गच्छित संबल कौन ना जो संबल संधान अच्छी बा आमे ए संबल विषय संधान पाई किंतु अव्यवहृत है कि पड़ी बा से गुड़िक व्यवहार करिवार कौनसी संभावना नहीं, गच्छित है कि रही आमर प्राकृतिक गंताघर रे ताहाकू कुआଯାଏ गच्छित संबल। आ थरे जो संबलर संधान करा जायछि एवं ए पर्यंत से गुड़िक व्यवहार उपयोगी होई पारि नाही ताहाकू गच्छित संबल कुआଯାଏ। उदाहरण लद्दाख रे थिबा यूरानियम, समुद्र गर्भ रे थिबा महण महण सुना जो समुद्र जल रे अछि, आ हिमालय पाददेश अगम्य अंचल रे रहिथिबा विभिन्न खनिज पदार्थ ताही मध्य गच्छित संबलर उदाहरण। संबल भंडार मनुष्यर आवश्यकता पूरण करिबा बोली जहाँ को आशा पोषण करा जायछे एवं प्रकृतिर गंताघरे रहिछे एवं व्यवहार उपयोगी हेई पारिबो बोली जहाँ को कल्पना करा जायछे से हेला संबल भंडार। पुणी आमे कहि पारिबा विकसित संबल, जो संबल को प्रकृतिर गंताघर संग्रह करा जायछि बा उत्तोलन करा जाय ताहाकू व्यवहार उपयोगी करा जाय पारिछे ताहाकू कहा जाय विकसित संबल। उदाहरण आम नहीं पारिबा खनिज पदार्थ, जल विद्युत शक्ति ये सब है विकसित संबल। सुना रूपा ये सब जो गुड़ाक आम व्यवहार करुछन्ते एहाकू विकसित संबल कहा जाए। संरक्षित संबल, जो संबल गुड़ी को संरक्षित कर रखा जाए आमर आवश्यकता पूरण करने
यथा जो जल प्रवाहित जल नदीर प्रवाहित जल को आम डैम द्वारा कौन करुछन्ति ताकु संरक्षण करी रखुछन्ति एवं आवश्यक मुताबक जल उत्पादन करा जाउछे एबा मत्स्य चाष करा जाउछे बहुमुखी नदीबंध योजना ये सब मध्य संरक्षित संबलर उदाहरण हो पारिब। 8 नंबर पॉइंट रे आमे जिबा मालिकाना अनुसार एठी संबल को मध्य विभिन्न भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथमटी हला व्यक्तिगत संबल, द्वितीयटी गोष्ठीगत संबल, तृतीयटी जातीय संबल, चतुर्थटी हला अंतर्जातीय संबल। एक हला व्यक्तिगत संबल, जन मनीष मालिकाना रे आ गोटे व्यक्तिर मालिकाना रे जो संबल थाए ताहाको व्यक्तिगत संबल कहा जाए। उदाहरण तुमर घर, चाष जमी बा तुमर अन्यान्य फार्म ये सब तुम व्यक्ति तुम्हें व्यवहार करुथुबा गहना गाड़ी मोटर इत्यादि एगुड़िक सब व्यक्तिगत संबल अंतर्गत। गोष्ठीगत संबल जो संबलर मालिक गोटे गोष्ठी बा जो संबल गोटे गोष्ठी अंतर्गत रे थाए ताहाकू गोष्ठीगत संबल कहा जाए। उदाहरण आमे नहीं परिबा गाँव फुटबॉल पड़िया, गोचर भूमि, श्मशान, सहरांचल रे क्लब, पाठागार ये सब केतक गोष्ठीर मालिकाना रे थाए, व्यक्ति विशेषर मालिकाना रे न थाए। तेणु एगुड़िक सब है गोष्ठीगत संबल। परवर्ती देखिबा जातीय संबल। आम देशर भौगोलिक सीमा मध्यरे थिबा संबल को जातीय संबल कहा जाए। आम देशर भौगोलिक सीमा मध्यरे जो संबल अच्छे बा उपलब्ध ताको ही जातीय संबल कहा जाए। समुद्र गर्भरे 370 किलोमीटर दूर पर्यंत विभिन्न रास्ता केनाल आमर जो जातीय राजपथ ये सब गुड़िक जातीय संबल अंतर्गत। आंतर्जातिक संबल बा अंतर्जातीय संबल जो संबल आम देशर भौगोलिक सीमा परे थाए बा समुद्र गर्भरे एटा 200 नॉटिकल माइल दूरठू जो संबल रहिला जोड़ा कि 370 किलोमीटर ठारू दूर रे जो गुड़िक रहिला ताहा आमर अंतर्जातीय संबल बोली कहा जाए। विशेष करी विश्व जाति संघ ही यार मालिकाना साब्यस्त करिथांती। एई भाव रे आमे आज विभिन्न प्रकार संबल विषय रे जानिले। तेणु ए विषय जेतक आज गला ये प्राय तुम मारिका प्रश्न। तेणु एगुड़ी को भल भाव रे देखिब एवं बारंबार ताको अभ्यास करिब। आउ गोटे अनुरोध सब्सक्राइब करने को भूलिब नहीं। रही।